Hello guys, today we are proceeding with the very important segment of the shares chapter, and that segment is forfeiture of shares. What is forfeiture of shares? Let me tell you about that. At first, the forfeiture of shares is the stage just after the call scenarios. What is call scenario? You have already gone through with that one. Call scenario are those amount which the company does not receive from its shareholder. जब एक शेयर होल्डर कंपनी को अपना रेलिवेंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है, दैट इज नॉन एज कॉल सिनेरियो. देन company has the right to forfeit the amount of shares which was paid by the shareholder. Means what? Just suppose Mr. Ram, who holds 500 shares, and out of rupees 10 he has paid only application and allotment. Rest amount of first call, second call and final call he hasn't paid. That means now the company has the right to forfeit the amount. Whatever the amount Mr. Ram has paid, that will be forfeited by the company, and his name will be debarred from the rank of shareholder. This is the right of a company. They can litigate on the shareholder, and they can also debar them from the rank of shareholder. This is the stage which is known as forfeiture of shares. So there are certain journal entries regarding forfeiture of shares and then reissue of those shares. What are those? The first one is on forfeiture. At first you will have to debit the share capital account, and the amount which you are not receiving will be shown in the credit side, and the amount which you have received will be shown in the credit side. Means what? Share capital account debit to call scenarios and to share forfeiture. But sometimes you will have to show security premium here as well. Why so? Just suppose if the shares were issued initially at premium, and premium is generally taken at the time of allotment, right? तो अगर allotment के समय में प्रीमियम है इशू के समय में, और allotment में आपका साथ ही साथ कॉल इन एरियर भी हो रहा है, इन दैट केस इट विल बी शोन हेयर. इफ़ वाला केस है, इफ़ allotment में एरियर है और allotment में प्रीमियम भी है, then at the time of forfeiture you will have to show security premium in the debit side. After the forfeiture, what will company do? Obviously they will reissue to the another person. There are three conditions regarding that. The first one is at par. At par means suppose मैं फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये मान लेता हूँ, 10 रुपीज़ का चीज़ आप 10 रुपीज़ में रीइशू कर रहे हो, दैट इज़ नॉन एज पार. डिस्काउंट मीन्स हो गया 10 का चीज़ 9, 8, 7 वॉटेवर. प्रीमियम हो गया 10 का चीज़ 11, 12, 13, जो भी है कंडीशन में लिखा रहेगा. तो एट पार कंपनी इज़ हैविंग नो प्रॉफिट नो लॉस. दैट मीन्स बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, जितने का दाम है उतने में रीइशू कर दिया. एट डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. We are not denoting here discount. Why so? Because whatever the amount the company has forfeited, if company faces any loss at the time of reissued at discount, that will be compensated from that amount. That's why डिस्काउंट नहीं लिखते हैं यहाँ पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखा जाता है. एंड एट प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. एंड एट द एंड यू विल हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर बैलेंस टू द कैपिटल रिजर्व. For that, share forfeiture account here to capital reserve. So these are the certain journal entries which you will have to bear in your mind. But practically, let's check out. So मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है. जैसे मिस्टर ए, a shareholder of a company, has 500 shares of ₹10 each, and he has been called ₹8 per share. 10 रुपये में से उस महाशय ने केवल 8 रुपये ही पे किए हैं, 2 रुपये नहीं पे किए. क्या क्या पे किया है? 2 rupees on application, 3 on allotment, 3 on first call. हैंग ऑन, ये आपका यानी 8 रुपीज़ जो कॉल्ड हुआ है उसमें 2 रुपये एप्लीकेशन में देना था उन्हें, 3 रुपये अलॉटमेंट में देने थे और 3 रुपये फर्स्ट कॉल में देने थे. ये है मोड ऑफ पेमेंट जो उनको करना चाहिए था. कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल किया नहीं है. दैट्स वाई यहाँ पे 8 रुपीज़ कॉल्ड अप लिखा हुआ है. आउट ऑफ 10 8 रुपीज़ ही कॉल्ड हुआ है, 2 रुपये फाइनल कॉल का नहीं किया है. ठीक है. मिस्टर ए ने पे किया है ओनली एप्लीकेशन मनी. मिस्टर ए हैज़ पेड ओनली एप्लीकेशन मनी. आउट ऑफ 8 उन्होंने केवल 2 रुपये पे किए. मीन्स अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल उन्होंने पे ही नहीं किया. दैट मीन्स वो एरियर हो गया. तो डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड लेटर रीइश्यूड. 2 केसेस मैंने यहाँ फ्रेम किया है.
कि अगर वो रीइशू कर रहे हैं 7 रुपीज़ पर शेयर इमीडिएटली, केस 2 ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। तो अभी आप देखो, जैसे मैंने बताया कि पहली जर्नल एंट्री जो होती है वो फॉरफीचर की होगी। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एरियर। तो भाई एरियर किस में हुआ है? एरियर हुआ है हम लोगों का अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कितने शेयर्स छीन रहे हो आप? मिस्टर राम के पास 500 शेयर्स थे और वो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ है। आई रिपीट, वो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ है, 10 रुपये तक नहीं पहुँचे हैं, 8 रुपये तक ही कॉल हुआ है, इसलिए यहाँ पे 8 रुपीज़ लोगे शेयर कैपिटल में। अगर वो 10 रुपये फुल्ली कॉल्ड अप हो जाता है तब 10 रुपीज़ लिया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का 4000 रुपीज़, 500 इंटू 8। अलॉटमेंट में आपका कितना रुपये करके है? यू कैन सी ओवर हियर वी हैव गॉट 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। 500 इंटू 3, 500 इंटू 3, तो ये हो जा रहा है हम लोग का 1500। अलॉटमेंट में नहीं मिला, 1500 फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, तो जो बैलेंस है सिंपली वो डिनोट करता है कि कितने रुपए शेयर्स प्रॉफिट हुए। केवल एप्लीकेशन ही दिया था ना 2 रुपये करके, 1000, दैट वन इज बीइंग प्रॉफिटेड। ये नरेट कर सकते हो आप, बीइंग शेयर्स प्रॉफिटेड, फॉर्मेलिटी है वो तो करनी पड़ती है जर्नल एंट्री में। नाउ व्हाट वी आर रीइशूइंग द शेयर्स एट ₹7 पर शेयर इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स व्हाट? 8 रुपीज़ का चीज़ 7 रुपीज़ में आप रीइशू कर रहे हो। जैसा मैंने बताया था कि 3 केसेस होते हैं, तो ये डिस्काउंट वाला केस है। 8 का चीज़ 7, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये केस 1 मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, केस 1। तो 8 रुपीज़ का शेयर है एंड 500 शेयर्स 8 रुपीज़ करके वैल्यू था 4000 एंड वी हैव रीइशूड एट ₹7। दैट मीन्स वी हैव रिसीव्ड 3500 रुपीज़ फ्रॉम द शेयर होल्डर। वी हैव सफर्ड विद ₹500। तो ये जो सफरिंग हुआ है, दिस सफरिंग विल बी कॉम्पेंसेटेड विद दिस फॉरफीचर क्रेडिटेड अमाउंट। 1000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, उसमें से चल 500 रुपया लॉसेस से एट द टाइम ऑफ रीइशू, स्टिल यू हैव गॉट 500 रुपीज़ इन योर हैंड एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट होगा कितना? तो आउट ऑफ 1000 रुपीज़ 500 डिडक्टेड 500। ये था आपका जब आप इमीडिएटली रीइशू करते हैं। लेकिन वही अगर मान लीजिए 8 रुपीज़ पर शेयर बगल में लिखा हुआ है क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पे 500 शेयर्स जो आपने अभी 8 रुपीज़ लिया था वहाँ पे 10 रुपीज़ लेना पड़ेगा। 500 इंटू 10 दैट विल बी 5000। 8 रुपीज़ करके रीइशू कर रहे हो तो 500 इंटू 8 दैट विल बी 4000। 5000 माइनस 4000 यहाँ हो जाएगा 1000। अभी आप देख रहे हो शेयर फॉरफीचर 1000 है, यहाँ पे भी उस समय 1000 ही रहेगा। मीन्स व्हाट कि यहाँ पर नील हो जाएगा बिकॉज 1000 माइनस 1000 नील होगा। क्लियर? लेट मी रिमाइंड यू वन सेकेंड। अगर केस नंबर 2 फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे 8 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, तो फुल्ली पेड अप में रीइशू के समय में 8 रुपीज़ नहीं लीजिएगा, 10 लीजिएगा। तो 10 की जगह मतलब ये हो जाएगा 5000। फिर उसके बाद आप 8 करके रीइशू कर रहे हो तो बैंक में आप 8 रुपीज़ करके लिखाओगे 4000 और आपको सफरिंग कितना हो रहा है? 1000। तो 1000 में से अगर 1000 लॉस सफ़र किया आपने तो यहाँ पर कितना ट्रांसफ़र होगा? नील। इन दैट केस यू आर नॉट हैविंग एनी profit, that nothing can be transferred to the capital reserve. So this is how we used to transfer the balancing amount of share forfeiture to the capital reserve. और इसी को फॉलो किया जाता है सभी ट्रेंड में। आपको केवल जब भी फॉरफीचर के डायरेक्ट सम्स रहते हैं तो ये देखना होता है कि शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप हुए कि नहीं हुए। फुल्ली कॉल्ड अप होगा
तो यहाँ पे 10 रुपीज़ करके लेते हैं। अगर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ है तो वो जितने कॉल हुए उतने रुपए करके शेयर कैपिटल लिए जाते हैं। आई होप यू गाइस हैव गॉन थ्रू विद दिस जर्नल एंट्रीज एंड द सम्स। थैंक यू।